بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں خوش آمدید۔ صبح 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں اظہر اقبال بندش۔ میں ہوں سمینہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کا احوال بتائیں گے قاسم علی۔ نیوز بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ پاکستان کی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ناکام بنانے والے بہادر اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس۔ بڑے شہروں کے ماسٹر پلانز کو اثر نو ترتیب دینے سے متعلق اجلاس۔ بڑے شہروں میں بغیر کسی منصوبہ بندی اور پھیلاؤ سے ماحولیات کو شدید خطرات لاحق۔ شہروں کی اثر نو منصوبہ بندی سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ اقتصادی راہداری پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کا بہترین منصوبہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاک چین دوستی کے مؤثر منصوبے کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر گفتگو۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے، اقتصادی راہداری منصوبوں کی جلد اور بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار۔ شیخوپورہ کے قریب سچا سودا ریلوے پھاٹک کراسنگ پر سکھ یاتریوں کی وین ٹرین کی زد میں آ گئی۔ حادثے میں 22 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شیخوپورہ میں ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار۔ وفاقی وزیر اطلاعات، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کا قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر دلی افسوس اور غم زدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ ٹیٹی دل کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات میں تیزی۔ مہم کے لیے 26 ارب روپے مختص۔ متاثرہ علاقوں میں سروے اور سپرے، 650 سپرے گاڑیوں اور 5000 افرادی قوت مصروف عمل۔ ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہازوں کا بھی استعمال۔ کسانوں کو امدادی رقوم دینے کے لیے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کی میڈیا بریفنگ۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ احساس پروگرام کے تحت 37,25,000 درخواست گزاروں کے لیے 29 ارب 72 کروڑ روپے کی منظوری۔ این ٹی سی کے لیے 2020-21 کا بجٹ منظور۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا نوجوان رہنما برہان وانی شہید کی تحریک آزادی میں خدمات کو خراج عقیدت۔ بہادر کشمیری نوجوان بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ انہیں شہدائے کشمیر کے قافلے کے ایک عظیم سپاہی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، سید علی گیلانی۔ لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے اسلام آباد احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک عہدے سے برطرف کر دیا۔ ارشد ملک کی برطرفی اس دور کا ڈراپ سین ہے جب ججز کو ہواریوں کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,387 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ کیسز کی تعداد 2,25,283 ہو گئی۔ مزید 68 افراد جان کی بازی ہار گئے۔
ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,619 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد متاثرہ مریضوں سے کہیں زیادہ، اب تک 1,25,094 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,11,91,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,29,000 سے زیادہ اموات، 63,30,000 سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,32,000 سے بڑھ گئی۔ برازیل میں 63,000 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ میانمار میں افسوسناک حادثہ، شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے پتھر کی کان میں کام کرنے والے 160 سے زیادہ مزدور ہلاک، 54 زخمی، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قومی کرکٹ اسکواڈ کا 6 کھلاڑیوں پر مشتمل دوسرا گروپ PIA کے ذریعے انگلینڈ پہنچ گیا۔ کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل۔ ووسٹرشائر میں موجود قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور مقابلے جاری، چیمپئن لیورپول کو اپ سیٹ شکست، مانچسٹر سٹی نے 4 گول سے ہرا دیا۔ پریمیئر لیگ میچز دیکھیے PTV اسپورٹس پر براہ راست۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں لیگ لیڈر ریال میڈرڈ کی گیتافے کے خلاف 1-0 سے کامیابی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بحریہ گرین لو کاسٹ اسکیم، بکنگ کلوزنگ سون۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں، بکنگ صرف 2,95,000 میں، قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن لوکل اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00-100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس میں ملک کی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اس عزم کو دہرایا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم پاکستان ملکی سالمیت کے دفاع کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اجلاس میں بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل پامالی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ اجلاس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی کوشش ناکام بنانے پر ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برس کے دوران بڑے شہروں میں بغیر کسی منصوبہ بندی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ماحول کو شدید خطرات لاحق ہونے کے ساتھ دیگر مسائل بھی پیدا ہوئے۔ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بڑے شہروں کے ماسٹر پلان کو ازسر نو ترتیب دینے سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ نے سرسبز علاقوں کو محدود اور زرعی رقبے کو متاثر کیا ہے۔ اس صورتحال سے فوڈ سیکیورٹی کو مستقبل میں شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر شہر کی سماجی اور معاشی سرگرمیوں کو مد نظر رکھ کر ماسٹر پلان میں ترمیم کی جائے اور اس عمل پر خصوصی توجہ دی جائے کہ شہری علاقوں میں نوجوانوں کے لیے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے بہتر مواقع پیدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تعمیرات کے شعبے کو مراعات کا مقصد اس کا فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए एक बेहतरीन मंसूबा और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों में पेशरफ्त पर जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने सी पैक अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि इदारे की इस्तेदाद को मजीद मौसर बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाक चीन दोस्ती की मज़हर सी पैक मंसूबे को हर हाल में मुकम्मल करेंगे और इसके समरात हर खास व आम पाकिस्तानी तक पहुंचाए जाएंगे। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि वज़ीर आज़म को सी पैक मंसूबों की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मंसूबों को बर वक्त और तेजी से मुकम्मल किया जाए और मंसूबों के फवायद तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचाए जाएं। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी पाक चीन मजबूत भाईचारे का अक्स और मुस्तकबिल की खुशहाली की जमानत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सी पैक अथॉरिटी के किरदार को सराहा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के वज़ीर खारिजा वांग यी के साथ टेलीफोन पर राबते में दो तरफा इलाकाई और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी और हांगकांग, तिब्बत, ताइवान और सिंगियांग के हवाले से चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर खारिजा ने अपने चीनी हम मनसब को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। दोनों वज़राए खारिजा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया और अगले पाक चीन अफगान सह मुल्की वज़राए खारिजा मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया। दोनों फरीकों ने इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द और बरवक्त तकमील के अज़्म का इजहार किया। चीनी वज़ीर खारिजा ने वाज़ेह किया कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी फेज 2 BRI मंसूबे का इंतहाई अहम हिस्सा है, जिसके जरिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा होगा और रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और फोकल पर्सन नसीमुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान पनागाहों की नज़्मो नस्क और एहसास प्रोग्राम के तहत बेसहारा और नादार अफराद को सहूलतों की फराहमी में मजीद बेहतरी के उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बेसहारा और नादार अफराद की किफालत रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पनागाहों में मुकीम अफराद की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इक़दामात और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब अफसोसनाक खबर, शेखुपुरा के करीब सुच्चा सौदा रेलवे क्रॉसिंग पर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ननकाना से पेशावर जाने वाली कोस्टर फैसलाबाद से लाहौर जाने वाली नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई। कोस्टर में सिख फैमिली के अफराद सवार थे। रेस्क्यू 1122 और ईधी की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि शेखुपुरा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर बहुत दुख और रंज हुआ है। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इंतजामिया को कहा गया है कि वो मुतासरा खानदानों को हर किस्म की सहूलियात फराहम करें। हुकाम को हिदायत की गई है कि तमाम रेलवे ऑपरेशन में नए सिरे से एहतियाती तदाबीर का जायजा लेकर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज, वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हादसे में कीमती इंसानों जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है।
नाजरीन, आपको बताएं कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से जायद का सर्वे किया जा चुका है। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 986 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में विफाकी सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतालिका इदारे शरीक हैं। बाज़ इलाकों में फ़िज़ाई स्प्रे भी किया जा रहा है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने इस्लामाबाद में इंसदाद टिड्डी दल के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि मुतासरा किसानों को इमदादी रकूम देने के लिए कवानीन में तब्दीली वक्त की जरूरत है। बलूचिस्तान में तो इस वक्त ये तमाम 33 अजला में पाया जा रहा है। एरिया सर्वे किया है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से ट्रीटमेंट जो हुई है, स्प्रेज जो हुए हैं, वो तकरीबन 9,274 स्क्वायर किलोमीटर किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने फिलहाल हमें 5 हेलीकॉप्टर दिए थे, जिनकी रीअलाइनमेंट करके और फॉर स्प्रेज, और उनका बड़ा इफेक्टिव स्प्रेज है। पिछले 2 हफ्ते खास तौर पर बलूचिस्तान में 3 वीवर्स हमारी अपनी मिनिस्ट्री के पास है। एक हमारे पास ऑन रेंट एयरक्राफ्ट हमने लिया था टर्की से, 5 रेंट एयरक्राफ्ट और लिए जा रहे हैं। सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि टिड्डी दल के फैलाव को रोकने के लिए इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत है। नाजरीन, मुल्क की अहम फसल कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतादद इकदाम किए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं मुल्तान से शिराज दुरानी अपनी इस रिपोर्ट में। कपास की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां धागा पैदा करने और इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। 50 लाख में से तकरीबन 13 लाख किसान 60 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त करते हैं। ये रकबा मजमूई ज़ेर काश्त रकबे का 15% है। कपास की मजमूई पैदावार का 70% पंजाब से हासिल होता है। रवां सीजन के दौरान सूबे भर में 45 लाख एकड़ ज़ेर काश्त रकबे से 75 लाख बेल्स का पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया है। फसल की अहमियत के पेश नज़र सूबाई हुकूमत किसानों को खाद, बीज और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी फराहम कर रही है। कॉटन की रिवाइवल के लिए हमने इस दफा बड़ी मेहनत की, अपने किसान भाइयों को मुतमिन किया और आपने देखा कि 45 लाख एकड़ तक हम पहुंच गए हैं। मुस्तकबिल में इसकी निगरानी, इसकी पूरी शफाफियत और इसमें महकमे की पूरी इन्वॉल्वमेंट इंशाल्लाह शामिल रहेगी। पंजाब में कपास की बेहतर निगहदाश्त और पैदावारी हदफ के हसूल के लिए मुल्तान में कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भरपूर जद्दोजहद और फाल किरदार अदा करने बारे जोर दिया गया। इजलास में बताया गया कि कपास के तहकीकाती इदारों ने अब तक आला बीज की 59 अक़साम मुतारिफ कराई हैं, जो न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी नुमायां रकबे पर काश्त की गई हैं। पाकिस्तान में कपास की फी एकड़ पैदावार तकरीबन 20 मन है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। कपास के तहकीकाती इदारों की जानिब से किसानों को बर वक्त और मौसर रहनुमाई फराहम करके इसकी पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया जा सकता है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने कहा है कि मुल्क में 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन पार्क से माहौलियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी और रोजगार के 5,000 से ज्यादा मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पार्क के लिए नेशनल पार्क सर्विस बनाई जा रही है। इसी इनिशिएटिव के तहत जहां पर सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, जहां पर आपके जॉब्स मिलेगी लोगों को, वहां पर जो लोकल कम्युनिटीज जो कि इन नेशनल पार्क के अंदर रहती हैं, इन नेशनल पार्क जो हैं ये वीरान नहीं है सारे, कई जगहों पे जो है कम्युनिटीज अंदर रहती हैं, तो उन कम्युनिटीज के भी राइट्स हैं और हमने उन कम्युनिटीज को एंगेज करना है। इसके साथ साथ इसका एक और मकसद ये है कि जो जंगली जानवर जो कि नापैद होते जा रहे हैं, तो हमारे पास अल्लाह के फजल से बहुत यूनिक जानवर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट में हम अपने इस कुदरती असासे को बचाने की तरफ, ये इमरान खान साहब का एक विजन था, उसके तहत ये उन्होंने कदम उठाया है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने एहसास प्रोग्राम के तहत 37,25,000 दरखास्त गुजारों के लिए फी कस 12,000 रुपए के हिसाब से 29 अरब 72 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में BISP के लिए माली साल 2020-21 के बजट में मुख्तस 200 अरब रुपए में से
29 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाजत दे दी गई है। मुशीर खजाना ने कहा कि रवा माली साल के दौरान BISP की किसी भी इजाफी जरूरत को पूरा किया जाएगा। बलोचिस्तान के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन कमेटी असद कैसर की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में बलोचिस्तान में बेघर होने वाले अफराद की वापसी और सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से गौर किया गया। वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर तवानाई उमर अयूब समेत वज़राए मुशीरान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बलोचिस्तान की तरक्की और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में कुदरत की तरफ से बेपनाह वसाइल मौजूद हैं जिन्हें सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CPEC पूरे मुल्क खासकर बलोचिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। स्पीकर ने कहा कि अमन व अमान की खराब सूरत हाल की वजह से बहुत सारे अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए, ताहम अब सूरत हाल में बेहतरी के साथ उनकी घरों की वापसी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कोशा रहेगा कि इक्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते में इक्तिसादी ताउन का मजबूत और मुस्तहकम मरकज बनकर सामने आए। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सुलेमानपुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ख़ारिजा ने कोरोना वबा के मुआशी मसमरात से निमटने और तरक्की पजीर मुल्कों की कमजोर मईशतों को सहारा देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की डेट रिलीफ तजवीज़ के खदोखाल से भी आगाह किया और इस ज़िम्न में मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के 80 लाख मासूम शहरी कोरोना वबा के बायस दोहरे लॉकडाउन की सऊबत बर्दाश्त कर रहे हैं। मजलूम कश्मीरियों को भारतीय जबरो इस्तिबदाद से निजात दिलाने के लिए आलमी बिरादरी को आगे आकर अपना किरदार अदा करना होगा। मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान वानी की तहरीक आज़ादी में खिदमत को सराहते हुए कहा है कि उन्हें शोहदाए कश्मीर के काफिले के एक अजीम सिपाही के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने श्रीनगर में अपने एक ट्वीट में कहा कि बुरहान वानी जैसे बहादुर कश्मीरी नौजवान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बुरहान वानी उस तारीख का तसलसल था जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक महफूज वतन अता किया। बुजुर्ग रहनुमा ने कहा कि शोहदा के काफिले का असल मकसद मजलूम अवाम की मदद करके अल्लाह ताला की खुशनुदी का हुसूल है। सैयद अली गिलानी का ट्वीट बुरहान वानी की शहादत की बरसी के तनाजुर में सामने आया है, जिन्हें भारतीय फौज ने 8 जुलाई 2016 को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। भारतीय पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ पुराने झूठे मुकदमात में बारामूला की एक अदालत में फर्द जुर्म दायर कर दी है। यासीन मलिक को, जो इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजरबंद हैं, वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। काबिज इंतजामिया ने जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के तर्जुमान जाहिद अली पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करके उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया है। जिला इस्लामाबाद के मटन थाने में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तहरीक आजादी के शहीद रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के छोटे भाई जहूर अहमद भट्ट के अहल खाना ने उनकी गिरती हुई सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। भारतीय फौजियों के हाथों मकबूजा कश्मीर के सोपूर कब्जे में बेगुनाह शहरी बशीर अहमद खान के बेईमाना कत्ल के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शरीक लोग बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ नारे लगाते रहे। इस मौके पर मुकर्री ने कहा कि सोपुर में अपने 3 साला नवासे के सामने बशीर अहमद खान की शहादत अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की तंजीमों और OIC के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मज़ीद 3,387 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 68 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,619 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,25,283 हो गई है।
کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد متاثرہ مریضوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب تک 1,25,094 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 80,297، سندھ میں 90,721، بلوچستان میں 10,717، خیبر پختونخوا میں 27,506، اسلام آباد میں 13,292، گلگت بلتستان میں 1,536 اور آزاد کشمیر میں 1,214 ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے ہلکا بخار محسوس ہوا تو خود کو الگ کر لیا، مجھ میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کرم سے خود کو طاقتور اور توانا محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے فرائض گھر سے جاری رکھوں گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی خدمت میں مصروف نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو قائم ہوئے 100 دن ہو گئے ہیں۔ ان 100 دنوں میں وبا سے نمٹنے، قومی یکجہتی، بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے اور معیشت کو بحال رکھنے کے لیے NCOC نے مؤثر حکمت عملی وضع کی۔ آج کے دن ان بہادر ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، سیکورٹی فورسز اور کورونا سے لڑنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ یہ عزم و ہمت اور جذبے کی ایک داستان ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی ایک ہیرو ہے۔ آج پوری قوم ان تمام ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ چیلنجز اور خاص طور پر قدرتی آفات کے خلاف جس یکجہتی، عزم اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، کورونا اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ اور دنیا کے برعکس پاکستان پر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے۔ ہر چیلنج میں فاتح بن کر ابھرنے والی پاکستانی قوم کورونا وائرس کے خلاف بھی ثابت قدم، متحد اور پرعزم ہے۔ ملک کی یکجہتی کے منظر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا وبا کے خلاف قومی کاوشوں کو تقویت دینے، شعبہ صحت کی بہتری، عوام تک اطلاعات کی بروقت فراہمی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آئیے زبردست جدوجہد اور قومی خدمت کی داستان جانتے ہیں عاصم رضوان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کورونا کی قدرتی وبا کے سامنے مشکلات سے دوچار تھی، پاکستان بالخصوص اس کی عوام اور دیگر ادارے اس وبا کے خلاف اللہ کی مدد سے ایک اتحاد کی شکل میں سامنے آئے۔ خیبر سے بولان تک، جامشورو سے چولستان تک، مظفر آباد گلگت بلتستان تک، ہر پاکستانی ایک استعارہ ہے اس جذبے کا، ہمت کا، جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ 26 فروری کو پاکستان میں پہلے کورونا کیس کی تشخیص سے لے کر آج تک حکومت پاکستان نے نہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدامات اٹھائے بلکہ ہر شعبے کی استعداد کار میں اضافہ کیا۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ، پاکستانی قوم پرعزم، وفاقی اور صوبائی ہم آہنگی، سول و فوجی اشتراک، عوامی اعتماد کا مظہر، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر۔ 23 مارچ کو قیام سے اب تک محض 100 دن، 1700 سے زائد گھنٹوں، شب و روز قومی کاوشوں کا مرکز، فیصلہ سازی میں ریڑھ کی ہڈی۔ کمانڈ سینٹر درست اور فوری فیصلوں کے لیے یومیہ ایجنڈا تیاری اور سفارشات قومی تعاون کمیٹی کو ارسال کرتا ہے۔ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ 66 اضلاع میں کمیونٹی موبلائزیشن پر متحرک طریقے سے کام جاری۔ ملک بھر میں انتظامیہ کی معاونت کا بیڑا اٹھایا۔ اس سلسلے میں پاک فوج نے بھی بھرپور مدد کے لیے تمام وسائل، بیشتر اثاثے، سپاہ، ہسپتال اور لیبارٹریز وقف کر دیں۔ حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران محنت کشوں سمیت 1,23,00,000 سے زائد لوگوں کو بھوک اور تنگ دستی سے تحفظ کے لیے 26 مارچ کو احساس ہنگامی کیش پروگرام شروع کیا، جس کے تحت اب تک 148 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی گئی ہے۔ بجلی کے بلوں پر 1200 ارب روپے ریلیف دیا گیا۔ 65 ممالک میں محصور 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو PIA اور غیر ملکی 478 پروازوں سے وطن واپس لایا گیا۔ قومی سطح پر کمانڈ سینٹر نے کورونا وبا کے خلاف مؤثر طریقہ کار وضع کیا، یومیہ اعداد و شمار تیار کیے، تجزیہ بحرانی کیفیت میں صلاحیتوں میں اضافہ کیا۔ ٹیسٹنگ صلاحیت 472 سے بڑھ کر یومیہ 50,000 سے زائد ہو گئی۔ لیبارٹریز کی تعداد 2 سے 132 ہو گئی۔ اسلام آباد میں 35 دنوں میں آئسولیشن ہسپتال انفیکشیس ٹریٹمنٹ سینٹر مکمل ہوا، جو 250 بستروں پر مشتمل ہے اور جولائی کے وسط تک کام شروع کر دے
गा। रैंप अप प्लान के जरिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ऑक्सीजनेटेड बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। जुलाई के आखिर तक मजीद 2364 ऑक्सीजनेटेड बेड्स शामिल किए जाएंगे, जिनमें आजाद कश्मीर के अस्पतालों को 60 बिस्तर, बलूचिस्तान 200 बिस्तर, खैबर पख्तूनख्वा 390 बिस्तर, पंजाब 620 बिस्तर, सिंध 445 बिस्तर, गिलगित बल्तिस्तान 40 और इस्लामाबाद के अस्पतालों को 609 बिस्तर दिए जाएंगे। रैंप अप प्लान के हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को 189 ऑक्सीजनेटेड बेड्स फराहम कर दिए गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोविड के लिए 1562 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जबकि 1895 मजीद वेंटिलेटर्स भी जल्द फराहम किए जा रहे हैं। रैंप अप प्लान के तहत इस्लामाबाद के अस्पतालों को 41 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए हैं। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तिब्बी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की काविशों से TTQ स्ट्रेटेजी मुतारिफ कराई गई ताकि कोरोना के फैलाव और हॉट स्पॉट की निशानदेही करके स्मार्ट लॉकडाउन को मुमकिन बनाया जा सके। TTQ स्ट्रेटेजी की बदौलत मुल्क भर के 30 शहरों में 130 हॉट स्पॉट्स में सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। 4271 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तहसील और कौंसिल के हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स शामिल हैं। मुल्क भर में अब तक 5,50,500 अफराद को ट्रैक किया गया और सूबाई हुकूमतों के मुताबिक उनमें से तकरीबन 75 से 80% लोगों के टेस्ट किए गए। NCOC की रिकमेंडेशंस के बाद 12 जून को मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया गया। NCOC ने जिन 112 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दिया है, इन इलाकों में इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की तादाद 46,226 है। सूबों के इन शहरों में लॉकडाउन लागू करने से वबा के फैलाव में वाज़ेह कमी आई है। NCOC ने 30 मई से मुल्क भर में फेस मास्क को लाजमी करार दिया और इस SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। अवाम को बजरिया मीडिया इस SOP के बारे में आगाह किया गया और फेस मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया। मुल्क भर में 12 जून को स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के बाद ये जरूरी था कि SOPs के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रोजमर्रा जरूरियात के लिए मखसूस दुकानें, कारोबार और ट्रैफिक की जरूरत की बुनियाद पर रवानी हो। मुल्क भर के तमाम अजला और इस सिलसिले में NCOC की जानिब से SOPs के निफाज के बाद मुल्क भर में SOPs की 2,56,710 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड हुई। 44,063 मार्केटों, दुकानों और 589 फैक्ट्रियों को सील किया गया, जबकि 27,547 गाड़ियों को बंद किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5,86,23,044 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वबा से मुकाबला करते डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के लिए इंफरादी हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर रहनुमा असूल वज़ा किए और दस्तावेजी फिल्म तैयार की। तिब्बी सामान और आलात, खुसूसन वेंटिलेटर्स की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए 48 तजावीज पर 13 डिजाइन शॉर्ट लिस्ट, जबकि 4 के ट्रायल्स शुरू किए। मसनूई जहानत से सीने के एक्सरे, नर्स यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग किट्स, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के तहत इंफरादी हिफाजती सामान की तैयारी का आगाज हुआ। वी केयर स्लोगन के तहत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स को ये एहसास दिलाया गया कि फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर उनकी हिफाजत के लिए उन्हें हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आगाही मुहिम के लिए PPEs गाइडलाइंस को मुख्तलिफ अस्पतालों और पब्लिक मुकामात में चस्पा किया गया। 2000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। आवाम को आगाही दी गई कि वो हेल्थ केयर SOPs पर अमल करें और अपनी और हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाएं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बहरानी कैफियत में यकसू इत्तलाती निजाम की बुनियाद रखी, मुल्की आबादी का मौसर जायजा लिया, बजरिया इंसानी और डिजिटल जराये दुरुस्त बर वक्त और 5 मुकामी जुबानों में आसान और मौसर इत्तलात की आवाम, कौमी ताउन कमेटी और मुतल्लिका इदारों को फराहमी यकीनी बनाई। बेहतरीन आलमी तजुर्बात की रोशनी में पहले मवासलाती हिकमत अमली और फिर रमजान हिकमत अमली तश्कील दी। बकर ईद की आमद के मौका पर NCOC SOP को वज़ा कर रहा है जो इस वबा में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हो और अवाम इस मजहबी फरीज़ा को एहसन तरीके से अदा कर सकें। इसके अलावा NCOC की जानिब से अवाम को कोरोना वबा से खबरदार रखने और इससे महफूज रहने के लिए TV, रेडियो, मोबाइल मैसेजेस और रिंग टोन्स, अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए मतला किया जा रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए PTA ने अब तक सार्फिन को 2215 मिलियन मैसेजेस, जिनमें जनरल अवेयरनेस मैसेजेस 132 मिलियन, रिंग बैक टोन्स 239 मिलियन एजुकेशनल मैसेजेस और 164 मिलियन प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड मैसेजेस भेजे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पर 3,76,595 मिनट एयर टाइम और 7,02,362 मिनट स्पॉट, जिसमें 200 के करीब प्रोमोज, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज कवरेज और प्रेस ब्रीफिंग शामिल हैं। रेडियो पर 13 मुख्तलिफ जबानों में इसी हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेजेस और दीगर मालूमात फराहम की जा रही हैं। प्रिंट मीडिया में कारपोरेट इश्तहारात, मीडिया हाउसेज के अपने लगाए हुए इश्तहारात,
कॉलम्स और एडिटोरियल्स के जरिए तमाम मालूमात दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डैशबोर्ड, व्हाट्सएप के जरिए आवाम तक तमाम मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, मुआलिजीन, हुक्काम, मीडिया और समाजी ग्रुप्स के लिए कलीदी जरिया साबित हुआ। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सफरात, दिफाई अताचियों, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया, चीनी फौजी और सिविल वफूद ने कमांड सेंटर का दौरा करके कारकर्दगी को सराहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यकजा, मुत्तहिद और पुरअज़्म पाकिस्तान का हकीकी अक्स साबित हुआ। वाज़ेह हो गया कि बहरान ख्वाह कैसा भी हो, कौमी इत्तेहाद से हर चैलेंज का मुकाबला मुमकिन है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,11,54,500 से तजावुज कर गई है, जबकि 5,27,900 अफराद हलाक हो चुके हैं। 62,29,000 अफराद बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका है, जहां 28,80,000 अफराद मरज से मुतासिर हैं, जबकि 1,32,000 अमवात हो चुकी हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 63,000 से बढ़ गई है। अर्जेंटाइन में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद ने कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा अतिया करना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम और बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मुल्क भर में कायम सेंटर्स में अपना प्लाज्मा अतिया करने के लिए गए। लोगों का कहना है कि अगर हम किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं और इस नेक काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। प्लाज्मा उन तमाम मरीजों के लिए मौसर साबित हुआ है जिनकी हालत कोरोना वायरस के बायस इंतहाई तशवीशनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक जरूरी है कि प्लाज्मा अतिया करने वाले शख्स को कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए कम से कम 2 हफ्ते गुजर चुके हों और उसका कोविड-19 टेस्ट 2 बार मनफी आया हो। शामिल करेंगे मजीद अहम कौमी खबरें। तरक्की और मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की तादाद कम हुई है। वेंटिलेटर्स पर जून के वस्त की निस्बत कम मरीज हैं। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। असद उमर का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद से कोरोना के फैलाव में कमी आई है। कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम है। जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर है, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज जून के वक्त में जहां पर थे हम उससे कम है। लेकिन अहम चीज ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नजर आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है। ये मजमूई तौर पे मैंने पाकिस्तान को आपकी सूरत हाल बताई है, लेकिन सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहां पर हमें इतनी बेहतरी नजर नहीं आ रही है और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़ा पेचियो के साथ। और उन्होंने भी, उनके जहन में कोई ख्यालात हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए ताकि जिस तरीके से बाकी तमाम मुल्क के अंदर हमें बेहतरी नजर आ रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध एक हमारा बहुत अहम सूबा है, वहां पे भी इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बेहतरी नजर आए। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के लिए 100 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया है। तफसील बता रहे हैं कराची से ज़िशान अहमद खान। अमेरिका ने जज्बे खैर सगाली के तहत पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के लिए 100 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया। कराची एयरपोर्ट के कार्गो वेयरहाउस में डिप्टी कौंसल जनरल अमेरिका जॉन हेलमायू ने USAID की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स NDMA के मेंबर ऑपरेशंस ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन के हवाले किए। इस मौके पर PTV से खुसूसी तौर पर बात करते हुए अमेरिका के डिप्टी कौंसल जनरल ने कहा कि ये वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों और दीगर साजो सामान तिब्बी अमले की सहूलत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वबा के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार है। Well, I think it's clear that friendship and cooperation between the U.S. and Pakistan has existed for many years. We've gone through our ups and downs, but the COVID pandemic has really brought out a strengthening of our partnership. And I think that is demonstrated by the almost $27 million that the U.S. has been contributing here in Pakistan and the partnership that these ventilators are showing that we're working on together. NDMA के मेंबर ऑपरेशंस ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन ने कहा कि ये वेंटिलेटर्स कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए माविन साबित होंगे और इन वेंटिलेटर्स को मुल्क के तमाम सूबों में जरूरत के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। ये ना सिर्फ वेंटिलेटर्स हैं बल्कि इनके साथ इनकी ट्रेनिंग भी है, मेंटेनेंस भी है और ना सिर्फ वेंटिलेटर्स के लिए ही है बल्कि जो हमारा क्रिटिकल केयर के लिए जो स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग भी इसके अंदर शामिल है। अमेरिका की जानिब से दिए गए इन वेंटिलेटर्स की मालियत $3 मिलियन है।
ان وینٹیلیٹرز کی مدد سے کورونا کے حساس مریضوں کو نہ صرف طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی بلکہ کئی مریضوں کی زندگیوں کو بچایا بھی جا سکے گا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ NDMA نے امریکہ کی جانب سے عطیہ کیے گئے وینٹیلیٹرز کی تقسیم کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ بلوچستان کو 13، خیبر پختونخوا کو 27، پنجاب کو 23 وینٹیلیٹرز دیے جائیں گے، سندھ کو 26، آزاد کشمیر 6 اور گلگت بلتستان کو 5 وینٹیلیٹرز دیے جائیں گے۔ NDMA نے ان وینٹیلیٹرز کی تنصیب کے لیے اسپتالوں کی فہرست بھی جاری کر دی ہے جو صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے مرتب کی گئی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی جیلوں میں فوری طور پر شکایت باکس رکھوانے کی ہدایت۔ محکمہ جیل کے کرپٹ آفیسرز اور اہلکاروں کی فہرستیں بنانے کا حکم بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی مصروفیات کا احوال بتا رہی ہیں شمائلہ شبیر اپنی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر گجرات میں جیل میں ہنگامہ آرائی کے واقعے پر وارڈن سمیت 9 جیل اہلکاروں کو معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے جیلوں میں نظم و ضبط کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تنقید برائے تنقید کرنے والے عناصر اپنی لوٹ مار کا حساب دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے باشعور عوام ان کرپشن زدہ سیاستدانوں کو مسترد کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں اور اراکین اسمبلی کے حلقوں میں ان کی مشاورت سے عوامی فلاح کے کام ہوں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے قومی اسمبلی کے چیف ویب ملک محمد عامر ڈوگر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے افسروں کی تعیناتی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے تعینات افسروں کو مالی اور انتظامی خود مختاری دی جائے گی اور صوبائی فائنانس ایوارڈ کے تحت اضلاع کو ترقیاتی فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ ملک محمد عامر ڈوگر نے پنجاب کا ٹیکس ریلیف بجٹ پاس ہونے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی عمر تنویر بٹ نے بھی ملاقات کی اور ادارے کی طرف سے چیف منسٹر فنڈ برائے کورونا کنٹرول کے لیے 9 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کو معاشی مسائل سے نجات دلانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی میں کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں محکمہ صحت سمیت تمام اداروں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس سے صوبے میں مجموعی طور پر کورونا کیسز اور اموات کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے محمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور وومن اینڈ چلڈرن ہسپتال چارسدے کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ اس صوبے کے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہسپتالوں میں 600 سے زائد بستروں کی تعداد بڑھائی ہے، جبکہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی 250 سے زائد بستروں پر مشتمل کورونا سینٹر بنا رہے ہیں۔ چارسدہ میں ہے جہاں پہ ہم نے ریپڈ بیسس پہ ایک ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کو بالکل ٹرانسفارم کیا ہے۔ اس کا ایک ونگ میں ہم نے 32 لوگوں کی سرج کیپیسٹی HDU اور ICU کی بنائی ہے جو چارسدہ ڈسٹرکٹ اور پشاور ویلی کے دونوں کام آئے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کورونا کے مریضوں کے لیے علیحدہ ہسپتال قائم کر دیا گیا ہے۔ اس ہسپتال میں تمام جدید سہولیات میسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بہت جلد اس اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال کا افتتاح کریں گے۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں بار بار اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملے۔ ایک منٹ کے لیے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اپنی جان کی پرواہ کی ہو، لیکن اپنی عوام کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر کے جو قربانیاں دی ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ ہماری نسلیں یاد رکھیں گی۔ مشیر اطلاعات نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے صحت کے شعبے کو مستحکم بنایا۔ محمد شاہد، PTV نیوز، پشاور۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی برطرفی کی منظوری دے دی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس نے ارشد ملک کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جج ارشد ملک کی برطرفی
उस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजेस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत को माफिया सोच, ब्लैकमेलिंग और करप्शन की सरपरस्ती पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। शुमाली म्यांमार में मिट्टी के तोदे गिरने से पत्थर की कान में काम करने वाले 160 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीन की सरहद के साथ रियासत काचिन में शदीद बारिशों से मिट्टी के तौदे गिरे, जिससे हलाकतें हुई। इस इलाके में अरबों डॉलर के कीमती पत्थर निकाले जाते थे। शदीद बारिशों के बायस एक पहाड़ का कुछ हिस्सा अलग हो गया, जिससे मिट्टी के तौदे कानकुनों पर आ गिरे। म्यांमार के महकमा फायर सर्विसेज के मुताबिक मिट्टी के तौदे गिरने से दर्जनों मजदूर इनके नीचे दब गए थे। फायर डिपार्टमेंट और मकामी पुलिस समेत रेस्क्यू वर्कर्स लाशें निकालने के लिए शदीद बारिश के बावजूद दिन भर कोशिशें जारी रखे हुए और 162 मरीजों की लाशों को निकाल लिया गया। 54 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। सबसे ज्यादा दर्जाए हरारत दादू 48, जैकबाबाद, नौकुंडी और दालबंदीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप इंग्लैंड पहुंच गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर सफर करने वाले खिलाड़ियों में फखर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल हैं। खिलाड़ियों का वुस्टरशायर पहुंचने पर कोविड-19 टेस्ट लिया जाएगा। नताइज आने के बाद स्क्वाड में शामिल हो सकेंगे। दूसरी जानिब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए वुस्टरशायर में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी है। कोचेज की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए भरपूर प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा है कि कोरोना टेस्ट के बाद खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उम्मीद है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना से क्रिकेट को धचका लगा। गुज़श्ता 3.5 माह खिलाड़ियों से रब्ता रखा, इनकी रहनुमाई जारी रखी ताकि वो फिट रहें। वकार यूनुस ने कहा कि कोरोना खत्म होने की सूरत में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। बसूरत दीगर ICC को गेंद चमकाने के लिए कोई और तरीका भी तलाश करना पड़ सकता है। कौमी T20 और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि तमाम तर तवज्जो टेस्ट सीरीज पर मरकूज है और फिर T20 का सोचेंगे। खुशी की बात है तमाम खिलाड़ी फिट हैं। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग भी की है। कप्तान ने कहा कि दौरा इंग्लैंड की टीम में तजर्बाकार और नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। इनफरादी कारकर्दगी से ज्यादा टीम की जीत अहम है। बतौर कप्तान चाहता हूं कि टीम को फतह मिले। भारत और श्रीलंका के दरमियान 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स होने की इत्तलात के बाद श्रीलंका में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। स्पेशल डिवीजन पुलिस ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के कप्तान कुमार संगाकारा को तलब किया। श्रीलंकन ओपनर अपिल थरंगा से 3 घंटे तफ्तीश की गई। भारत ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन होने का एजाज हासिल किया था। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल महिंदा नंदा की जानिब से फाइनल फिक्स की इत्तलात के बाद तहकीकात का दायरा वसी करते हुए श्रीलंकन खिलाड़ियों को तलब किया गया है।
بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل فکسڈ ہونے سے متعلق سری لنکن وزیر کے بیان پر آئی سی سی کے جنرل مینیجر ایلیکس مارشل نے کہا ہے کہ آئی سی سی کی انٹیگریٹی یونٹ اس معاملے پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے آئی سی سی اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت کسی قسم کے شواہد فراہم نہ ہونے پر تحقیقات شروع نہیں کر سکتی. اس سلسلے میں سری لنکن وزیر یا کسی حکام کی جانب سے کوئی خط یا ثبوت ابھی بھی موصول نہیں ہوئے. ایلیکس مارشل کا کہنا ہے کہ جو ہی اس حوالے سے ثبوت فراہم ہوں گے آئی سی سی کا متعلقہ یونٹ کھیل کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے تحقیقات شروع کر دے گا. اسپورٹ ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اوور ٹو مین ڈیسک. بہت شکریہ شفیق اور ناظرین. کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمینا رانا اور اظہر اقبال بنگش کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن. اب سارے دل تھام کے بیٹھو، سچی چاہ کی باری آئی. جنت کی یعنی خیبر پختونخوا کی باری آئی. یہ خطہ مہمان نوازوں اور دلیروں کی بستی ہے، یعنی شیروں کی بستی ہے. اس خطے میں ملے گی کھیتی باڑی اور زرخیز زمین اور پسینے میں ڈوبی شفاف جبین. کچھ بابا رحمان کے مصرے اور خوشحال خٹک کی نظمیں، کچھ تاریخ کے کھلے دریچے، کچھ ماضی کی انمٹ رسمیں. قصہ خانی سے ملتے ہیں تیکھے کھانے، جن سے سیکھے ہر پکوان میں گرم مسالوں کے افسانے. رنگوں اور سروں کی سنگت دیو مالائی لگتی ہے کیلاش کی رنگت. بہت پرانے ہیں چترال کے محل اور ان کے گہرے سائے. باغوں میں قدرت نے کیسے رنگ کھلائے. خوابوں جیسی وادی میں شندور کا میلہ، جس کی بازی ہر البیلا کھل کر اور جی جان سے کھیلا. حسن کے ہے شاہکار سواد اور مالم جبا. برف کی شالیں اوڑے ہیں کوثار نرالے، پاک سفید جبینوں والے. دور کہیں کالام کے سبزہ زار اور کلیاں جیسے کوہ کاف کی گلیاں. ایک طرف ناران کی جنت، ایک طرف کاغان کی جنت، بیچ میں پریوں والی جھیلیں. جو لب ان سے پانی پی لیں جنت کے کچھ لمحے جی لیں. لولو پت سر جھیل کا ٹھنڈا میٹھا پانی، جس کی سبز مٹھاس پئیں سب اور جیئیں سب. جیتے جیتے گائیں نغمے پشتو اور ہندکوں کے کھٹے میٹھے لہجے. خٹک کا رقص اور اس کے پھیرے، اتڑ کی تال کے مست جھکورے. بابو سر کا خوشبو سے بھرپور یہ جادو، جادو جو سر چڑھ کر بولے. درائے خیبر اس بستی میں بستے ہر جانان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے. پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت. ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت
हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। सुल्तान अलाउद्दीन और शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक की। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुगरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसके हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और कुंदुगलू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। दीन इस्लाम ज़ाब्ता-ए हयात है। दीन इस्लाम अमन और सलामती का रास्ता है। जरा सा गौर व फहम हमें इस रास्ते का मुसाफिर बना सकता है और दीन इस्लाम के अहकामात को हमें समझा सकता है। सिर्फ PTV न्यूज पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। बादाम में विटामिन ई की वाफिर मिक़दार मौजूद होती है। ग़ज़ा में इसका इस्तेमाल कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद विटामिन जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाते हैं। सूरजमुखी के बीज फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ई का जरिया होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इस्लाम के मुताबिक सफाई निस्फ ईमान है। आपने अपने इस आधे ईमान को मुकम्मल करके इस वायरस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देनी है। अपने हाथों को बार बार कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना है। कोशिश करना है कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों से मिलने,
मुसाफा करने से या गले मिलने से गुरेज करें। अगर आपको छींक आती है तो छींकते वक्त कोशिश करें टिश्यू का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। हर आम नज़ला जुकाम या खांसी कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस के हवाले से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इससे मुतासिर होने वाले हर शख्स में हम अगर बात करें तो मजमूई तौर पर तकरीबन 95 से 96% अफराद ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं। हर शख्स को इसकी तमाम तर अलामात जाहिर भी नहीं होती। तो आइए इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ दें।